بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ایک ملزم کے قانونی حقوق کیا ہوتے ہیں؟ ایک ملزم میں اور مجرم میں بہت فرق ہے۔ جب تک الزام ثابت نہیں ہو جاتا، ایک شخص ملزم سے مجرم نہیں بن جاتا، اور جب تک وہ مجرم قرار نہیں پاتا، قانونی طور پر اس کو بہت سے حقوق حاصل ہیں۔ اس کے علاوہ جب سزا ایک ملزم کو ہو جاتی ہے اور وہ مجرم ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے، تو اس کو بھی کچھ قانونی حقوق حاصل ہو جاتے ہیں۔ ایک ملزم کا حق ہے کہ گرفتاری سے متعلقہ جو بھی قواعد و ضوابط مجموعہ ضابطۂ فوجداری، پولیس رولز 1934 اور کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 کے اندر موجود ہیں، ان کو بروئے کار لایا جائے، ان قواعد و ضوابط پر عمل کرتے ہوئے اس کو گرفتار کیا جائے، اور ان رولز اینڈ ریگولیشنز جو قانون دے رہا ہے ان پہ عمل کیا جائے۔ یہ ایک ملزم کا قانونی حق ہے۔ اس کے بعد ایک ملزم کو گرفتاری کی وجوہات جاننے کا مکمل حق ہے کہ کس وجہ سے اس کو گرفتار کیا جا رہا ہے، کس الزام کی پاداش میں، کس جرم کی پاداش میں۔ یہ اس کا قانونی حق ہے کہ اس کو بتایا جائے کہ کیا اس کے اوپر الزام ہے اور کون سی ایف آئی آر ہے، کون سا وقوع ہے جس کی بنا پر اس کو گرفتار کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد ایک ملزم کو گرفتاری کے بعد within 24 آور علاقہ مجسٹریٹ کی عدالت میں پیش کرنا ملزم کا قانونی اور آئینی حق ہے، جس سے کوئی ڈیویشن، اگر کسی قسم کی خلاف ورزی جو ہے وہ ملزم کے قانونی حق سے محروم کرنے کے برابر ہے۔ گرفتاری کے بعد ایک ملزم کو اس کے رشتہ داروں، اس کے وکلاء کے ساتھ، ان کے عزیز و اقارب کے ساتھ رابطہ کرنا اور ان سے ملاقات کرنا، ان کو قانونی ایک ملزم کو حق ہے کہ وہ اپنے رشتہ داروں سے، اپنے وکلاء سے رابطہ کر کے ان کو آگاہ کر سکے اور ان کو مل سکے، ملاقات کر سکے ان سے۔ اس کے بعد ایک ملزم جب گرفتار ہو جاتا ہے تو گرفتاری کے بعد خوراک اور ضروری سامان اس کو ملنا، اس کی زندگی گزارنے کا جو بنیادی نیسیسٹی خوراک ہے، ضروری سامان ہے، وہ حاصل کرنا اس کا قانونی اور آئینی حق ہے۔ اس کو زندہ رہنے کا حق ہے، نیسیسٹیز کے ساتھ، ضروریات زندگی کے ساتھ۔ اس کے بعد دستاویزات اور بیانات جو بھی اس کے خلاف پراسیکیوشن نے پیش کیے ہیں، ان کی نقول کو حاصل کرنے کا حق آرٹیکل سیکشن 265C مجموعہ ضابطۂ فوجداری 1898 کہتا ہے کہ بعض دستاویزات اور بیانات کی نقول کی فراہمی ملزم کا حق ہے، اور اس حق سے انکار نہیں کیا جا سکتا، مگر اگر اس حق کو تسلیم نہ کیا گیا، اس پر عمل نہ کیا گیا ہو، تو پراسیکیوشن کی تمام کارروائی جو ہے وہ کالعدم ہو جائے گی اور باطل ہوگی، اور جب پراسیکیوشن کی کارروائی باطل ہو جائے، کالعدم ہو جائے، تو پھر یا ملزم کو بری کر دیا جائے گا یا معاملے کو ریمانڈ کر دیا جائے گا۔
दस्तावेज़ात और नकूल की फराहमी अंडर सेक्शन 265C मजमूआ ज़ाब्ता फौजदारी बुनियादी तौर पर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का जो बुनियादी असूल है कि मुल्ज़म को इस बात से आगाह होना चाहिए कि उसके खिलाफ क्या इल्ज़ाम है, क्या शहादत है और प्रोसिक्यूशन के गवाहान उसके खिलाफ क्या बयान दे रहे हैं। मुल्ज़म बयानात 161 के जो हैं बयानात हैं उनकी नकूल ले सकता है। अगर कोई 164 की स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुई है तो उसकी नकल ले सकता है। केमिकल एग्जामिनर की कोई रिपोर्ट है तो उसकी नकल ले सकता है। किसी मुतनाज़िया तहरीर प्रोसिक्यूशन ने पेश की है तो उसकी नकल ले सकता है। अगर दौरान तफ्तीश कोई गैर कानूनी या कानूनी तो 161, 164 जो भी बयान थे वो ले ली उसने कॉपी। अगर हत्ता के कानून यहाँ तक कहता है कि अगर कोई गैर कानूनी बयान भी है तो वो बयान भी मुल्ज़म को कॉपी हासिल करना उसका हक है। गवाहान के जो भी मजीद बयानात हैं, कोई एडिशनल एविडेंसेस हैं, कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस हैं, एक्सपर्ट ओपिनियंस आ गई हैं कोई, या साइट प्लान है वकूआ का, वो तमाम की कॉपी लेना मुल्ज़म का कानूनी हक है कि वो नकूल चालान दाखिल होने के बाद ट्रायल शुरू होने से 7 यौम पहले तमाम नकूल की कॉपियाँ उसको मिल जानी चाहिए। फ्रेमिंग ऑफ चार्ज से 7 दिन पहले कम अज़ कम उसको तमाम की तमाम नकूल उसको मिलना उसका कानूनी हक है। ये बात इंटरप्रेट भी हुई PLD 2003 लाहौर हाई कोर्ट पेज 290 के अंदर। याद रखिएगा कि एक मुल्ज़म को प्रोसिक्यूशन की डॉक्यूमेंट्री एंड ओरल एविडेंसेस की जो भी नकूल हैं उनको हासिल करने का बुनियादी कानूनी हक दिया गया है और सेक्शन 265C ऐसा ऑर्डर मैंडेटरी करार देती है। और अगर उसको नकूल नहीं दी गई हैं और उस नकूल दिए बगैर ही फ्रेमिंग ऑफ चार्ज कर दिया गया है, देन याद रखिएगा कि ऐसी कन्विक्शन 0/0 मुल्ज़म बरी हो जाएगा। ये बात इंटरप्रेट भी हुई 2004 MLD पेज है 1468 के अंदर इस बात को इंटरप्रेट किया गया था। उसके बाद जब भी कभी किसी वकूआ या किसी इल्ज़ाम के अंदर, प्रोसिक्यूशन के किसी बयान के अंदर जो भी शक व शुबा, जो भी डाउट पैदा होगा, उस शक व शुबे का तमाम फ़ायदा हासिल करना एक मुल्ज़म का कानूनी हक है। क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस जो है उसका एक सेटल्ड प्रिंसिपल है कि बेनिफिट ऑफ डाउट जो है वो हमेशा मुल्ज़म को एज ए राइट मिलेगा। राइट नहीं मुल्ज़म के साथ दी जा रही उसको कि भाई जहां पे शक पैदा हो गया है तुम्हारे साथ राइट बरती जा रही है, नहीं, जहां पे शक पैदा हो गया है तो राइट नहीं बल्कि उसको उसका हक दिया जा रहा है कि वो मुल्ज़म जो है शक व शुबा जो भी जहां पे प्रोसिक्यूशन के वकूए में शक व शुबा हुआ है उसका फ़ायदा मुल्ज़म को बतौर हक मिलेगा। और याद रखिएगा कि सज़ा देने के लिए एक मुल्ज़म को, प्रोसिक्यूशन को बियॉन्ड द शैडो ऑफ डाउट ऐसे सरकमस्टांसिस में सज़ा होगी जब इस्तगासा ने बियॉन्ड द शैडो ऑफ डाउट, जहां हत्ता के शक व शुबों का कोई गालिब इम्कान ही ना हो, उसका साया भी ना पड़े शक व शुबे का, देन सजायाबी होगी। मामूली सा शक भी मुल्ज़म को फ़ायदा देगा और प्रोसिक्यूशन के टोटल केस को हिला के रख देगा और ये फ़ायदा बेनिफिट ऑफ डाउट का
मुल्ज़म का कानूनी हक है और कोई शख्स बिला सबूत और मुजरम साबित किए बगैर कभी भी कन्विक्ट नहीं किया जा सकता। जब भी प्रोसिक्यूशन जो भी शहादत देगी वो काबिल भरोसा होनी चाहिए। शुबों का जो भी बेनिफिट ऑफ डाउट है वो मुल्ज़म को एज ए राइट मिलेगा। इस पे 20 केस लाज हैं जो कि पाकिस्तान की मुख्तलिफ आला अदलिया ने सेट किए हैं और ये बात 1998 SCMR पेज 1993 के अंदर भी इंटरप्रेट की गई और आज तक 2018 तक ये एक सेटल्ड प्रिंसिपल बेशुमार 20 केस लाज में यही सेटल्ड प्रिंसिपल जो है इंटरप्रेट किया गया है। याद रखिएगा, जब भी क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस में दो प्रिजम्पशंस आ जाए, दो क्यास किसी वकूवा से निकले, जहां दो क्यास मुमकिन हों तो ऐसा क्यास कबूल किया जाएगा जो कि मुल्ज़िम को फायदा देगा। जहां पर मुल्ज़िम के हक में अलग अलग दो क्यास मौजूद हों और जिस क्यास से कोई शक व शुबा निकल रहा हो, देन जहां पे भी शक व शुबा निकल रहा हो, शक व शुबे का फायदा मुल्ज़िम को बतौर हक दिया जाएगा, एक राइट के तौर पे नहीं दिया जाएगा बल्कि उसका कानूनी हक है। ये बात सेटल्ड प्रिंसिपल फर्स्ट टाइम जब हम देखते हैं मुख्तलिफ जर्नल्स में और बार बार ये रिपीट हुआ है, 2018 तक ये रिपीट होता रहा है। फर्स्ट जो इस पे सेटल्ड प्रिंसिपल जिस पे सेट किया गया है वो केस लॉ PLD 1959 सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पेज 480 के अंदर इस प्रिंसिपल को फंडामेंटल प्रिंसिपल डिक्लेयर करते हुए इसको इंटरप्रेट किया गया था और बाद में 2018 तक इसी रूल को, इसी सेटल्ड प्रिंसिपल को बार बार रिपीट किया गया है। याद रखिएगा, पुलिस रूल्स 1934 रूल्स 26.21 कहता है कि जब भी किसी शख्स पर बेलेबल ऑफेंस का इल्जाम है तो पुलिस ऑफिसर लाजमन उसकी जमानत ले लेगा, लेकिन हमारे यहां ऐसे नहीं है। पुलिस रूल्स 26.21 हर रोज वायोलेट होता है और बेलेबल ऑफेंसेस में पुलिस ऑफिसर 24 घंटे एक मुल्ज़िम को बिहाइंड द बार रखते हैं, देन वो पेश करते हैं मजिस्ट्रेट साहब की अदालत में, देन उसकी बेल ली जाती है। और पुलिस रूल 26.21 में दर्ज है कि नाकाबिले ज़मानत जराइम में गिरफ्तार अशखास को ज़मानत पर रिहा करने का इख्तियार एक थाने के SHO को अंडर सेक्शन 169 और 497 मजमूआ ज़ाब्ता फौजदारी 1898 हासिल है। अलबत्ता अगर पुलिस ऑफिसर जो SHO है उसने एक दफ़ा किसी मुल्ज़िम को गिरफ्तार करके ज़मानत पर छोड़ दिया तो फिर उसकी कोई पुलिस अफसर अदालत से हुक्म मनसूखी ज़मानत हासिल किए बगैर उसको दोबारा गिरफ्तार नहीं कर सकेगा। 169 के तहत जब एक दफ़ा बंदा डिस्चार्ज कर दिया गया या बेल आउट कर दिया गया, देन उसकी कैंसिलेशन मूव करेगा कोई भी पुलिस ऑफिसर, देन उस जुर्म में उसको दोबारा गिरफ्तार किया जाएगा। सेक्शन 497 सब सेक्शन 2 मजमूआ ज़ाब्ता फौजदारी 1898 कहता है कि अगर किसी मुल्ज़िम का मुकदमा फर्दर इंक्वायरी के ज़ुमरे में आता है तो उसे ज़मानत देना उसका हक है। अगर किसी जुर्म नाकाबिले ज़मानत जुर्म में फर्दर इंक्वायरी का मामला आ जाता है, मज़ीद इंक्वायरी का मामला आ जाता है, तो फिर ज़मानत पर रिहा किया जाना एक मुल्ज़िम का हक है, रायत नहीं है। ऐसी सूरत में उसकी इस हक से इनकार नहीं किया जा सकता जब मुल्ज़िम ने साबित कर दिया कि मामला मज़ीद इंक्वायरी का है, फर्दर इंक्वायरी का है, देन उसको फौरी तौर पर ज़मानत पर रिहा किया जाएगा। ये बात 2004 PCRLJ
1331 के अंदर भी इंटरप्रेट हुई है। बुनियादी असूल ज़मानत पर जब भी मामला आए तो उसको रिहा किया जाएगा, बेल दी जाएगी, जेल नहीं भेजा जाएगा। जेल नहीं होनी चाहिए, ज़मानत होनी चाहिए। और नाकाबिले ज़मानत का मतलब बिल्कुल ज़मानत नहीं है, और ना ही कोई ये मैटर है कि ये नाकाबिले ज़मानत जुर्म है तो लाजमी ये जेल में जाएगा। सेटल्ड प्रिंसिपल है कि अगर मामला फर्दर इंक्वायरी में आ गया है तो बेल आउट कर दिया जाएगा। और जहां मुल्ज़िम का मुकदमा ज़मानत पर रिहाई के लिए मुनासिब है, फर्दर इंक्वायरी में फ़ाल करता है, तो ज़मानत पर रिहा किया जाना एक मुल्ज़िम का बुनियादी कानूनी हक है। और ये बात 2005 MLD पेज 482 के अंदर इंटरप्रेट भी की गई है। दोस्तों, एक मुल्ज़िम को कानूनी कौन कौन से हक हासिल हैं, ये तमाम कानूनी हकूक़ हम आहिस्ता आहिस्ता मुख्तलिफ सेगमेंट्स में डिस्कस करेंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।